So now we move on to image formation due to lens. See, lens always causes refraction, that is done. Okay, so here we are studying that lens is nothing but a refracting media. So for image formation, we require minimum two refracted rays should meet or appear to meet. Right? Should meet or appear to meet. If they meet, they will give rise to something called as real image. So here I'll get a real image. Appear to meet आएगा तो virtual image. ठीक है? Right? Now, if I say I have a lens and there is an object here. From this object, remember, if it is a real object मतलब यहाँ से incident rays diverge होंगी in all possible direction. How many such rays will come out? Infinite such rays will come out. Now, any two ray, one ray, so let us say passing through the principal axis, any two ray, if they meet or appear to meet, there will be a formation of image. How much is the distance required for two rays to pass through the lens? Very, very small. So even if I cover large portion of the lens, I make it opaque, only this much portion is remaining. Question they'll ask you, will the image be formed? Answer is yes, image will be formed. Why? Because let us say this is ray number 1, it will undergo refraction. यहाँ हो गया उसका, यहाँ से एक दूसरी ray आएगी, उसका refraction हो गया यहाँ, and there can be a formation of image. Because for formation of image, minimum कितनी rays चाहिए? 2 refracted rays चाहिए. So if there are 2 refracted rays, I can get an image. And how much is the distance required for 2 refracted rays to pass? Negligible. So अगर even मैं 99.99% of the lens cover कर दूंगा, 0.001% भी space है, then light can pass. Unless and until पूरा 100% lens को opaque बना दिया जाएगा, light will not pass and you are not going to get any image. Now, so even if a small portion of lens is open, you are definitely going to get an image, right? But what is going to change? Don't you feel the aperture has decreased? And since the aperture is decreasing, there has to be decrease in intensity. देखो आपका aperture पहले पूरा था. This was the opening through which light was coming. Now the opening is only this much. So since there is a decrease in aperture, the intensity of image will decrease. तो in such scenarios याद रखना, question अगर आया तो आपको बोलने का full image with reduced intensity is formed. ठीक है? Full image with reduced intensity is formed. ये हो गया. अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो बेटा इसी में. अगर सपोज मैंने एक लेंस लिया और मेनी ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट डिफरेंट मीडिया लगाया, फॉर एग्जांपल ये mu1, ये mu2, ये mu3 और ये mu4, ठीक है, और मेरे पास यहां एक ऑब्जेक्ट है. क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. जरा सोचिए, दीज आर नॉट ओपेक, दे आर ट्रांसपेरेंट मीडिया, तो लाइट हैज टू पास थ्रू देम. अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, एनी लाइट पासिंग नॉर्मली अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वो तो सीधा ही जाएगी. अब लेट अस से एक रे यहां से गई, mu3 विल कॉज अ रिफ्रैक्शन और उसका इमेज I3 यहां बनेगा. एक रे यहां से गई. Now the refraction caused by mu3 and the refraction caused by mu1 will be different. So mu1 में भी image यहाँ form कराएगा. So image number 2 आ गया. Now let us say ये यहाँ गया तो ये यहाँ form होगा, ये I2 आ जाएगा, और ये अगर यहाँ गया तो यहाँ का image form हो गया, ये क्या आ जाएगा बोलो? I4. Since every medium will cause different refraction, there will be what called me formation of different images. So total कितने images form हो गए? 4. Why 4 only? Why not 3? Why not 2? Answer. How many refracting media we had placed horizontally? 4. We had placed 4 refracting media horizontally. So the number of images formed were 4. For example, if 3 were placed, the number of images will be formed 3. If 2 were placed, number of images formed will be 2. If there was only 1, there will be definitely 1 image formed. Yes or no? So, अपना क्या conclusion निकलेगा? Number of images formed is equal to number of RI placed
हॉरिजॉन्टली, बराबर, मानते हो? यस। अब यही क्वेश्चन अगर हम ऐसा पूछें कि देखो अपने पास एक लेंस है, अब ना मैं नंबर, ये जो ऑप्टिकल मीडियम्स है उनको मैं वर्टिकली प्लेस करेगा, मतलब ये देखो ऐसा, ये मेरा μ1, दिस इज μ1, ये μ2, तो ये वाला μn है, ये ऑप्टिकल मीडियम है μ1 और ये μ2 है, यहां आएगा μ3, यहां आएगा μ4, तो ये आया म्यू, ये वाला ये जो दिख रहा है ये तो लेंस है समझो, ये क्या आएगा μ3 और ये क्या आएगा μ4। सेम क्वेश्चन, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा है, हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म, एनी रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे कुछ भी हो यार, नॉर्मल है, तो दिस हैज टू ट्रैवल व्हाट कांट टेल मी स्ट्रेट। ओके, अब जरा देखो यहां से लाइट एंट्री मारेगी, आई टोटली एग्री कि μ4 एक रिफ्रैक्शन कॉज करेगा, μ3 रिफ्रेक्ट, अभी लेंस में घुसेगा, कुछ अलग रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहां से कुछ अलग रिफ्रैक्शन हो सकता है, यहां से कुछ अलग रिफ्रैक्शन हो गया, लेकिन यार सारे रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे आएगी, राइट, सो इट विल फॉर्म ओनली वन इमेज ना। अभी फॉर एग्जांपल यहां से एक रे घुसी, लेट अस से उसका रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा हुआ, इट बेंड्स लाइक दिस एंड देन इट बेंड्स लाइक दिस, फिर ऐसा कुछ बेंडिंग होके ऐसा, फिर भी एक ही इमेज यहां फॉर्म हो। सो दिस इज व्हाट, नाउ आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू ऑल ऑफ देम इट विल अगेन कम बैक टू व्हाट कांट टेल मी द सेम पॉइंट, राइट, क्योंकि ऑल दीज मीडिया आर सेम। सो अगर मैं वर्टिकली प्लेस करेगा बेटा, इफ आई प्लेस इट वर्टिकली, ऑल दीज वर्टिकली, the number of images is always going to be 1, means because the refraction is going to be common। यहां क्या हो रहा था, horizontal place होने के कारण different refracting media were, you know, producing different refraction, and one ray was passing, let us say many rays are passing through this medium, this media, this media, they all would not meet at the same point। Here any ray, if you start any ray, कुछ भी होने के बाद वो वहीं जाके मिलने वाला है, yes or no, because end में refraction सबका end में same होके वही point पे मिलेगा। So here the number of images formed will be only what, 1। So याद रखना, can I say number of images, in this case number of images is equal to 1 if Ri are vertically placed, vertically and covering the entire lens, of course vertically placed, ठीक है। So these are image formation due to lens में हमको तीन चीजें पढ़नी है कि अगर मैंने कवर किया तो ऑफकोर्स फुल इमेज फॉर्म होगा हमेशा, इंटेंसिटी रिड्यूस होगा, नो डाउट, अगर ओपेक बना है। अगर आपने डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम रख दिए, ओके, थ्रू विच लाइट कैन पास हॉरिजॉन्टली, तो जितने आप ऑप्टिकली हॉरिजॉन्टल मीडियम रखेंगे उतने इमेजेस फॉर्म होंगे, और वर्टिकली जितने रखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 1। या द रिफ्रैक्शन, इट विल अंडरगो डिफरेंट रिफ्रैक्शन बट कम एंड मीट एट द सेम पॉइंट फ्रॉम डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रे लोगे, फाइनली वो रिफ्रैक्ट होके जब इमर्ज होगी, इट विल कम एंड मीट एट द सेम पॉइंट वेयर अदर रे इज गोइंग टू रिफ्रैक्ट, यस और नो। सो दिस इज नथिंग बट इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू लेंस। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे जाते हैं। हमारा एक फॉर्मूले पे हमने काफी रिसर्च कर लिया, याद करो, 1/f is equal to mu minus 1 1/r1 minus 1/r2। अब एक फॉर्मूला रिसर्च के लिए बाकी है, 1/f is equal to 1/v minus 1/u, that is lens maker formula। तो बेटा नाउ वी स्टार्ट विद रे डायग्राम ऑफ लेंसेज। रे डायग्राम करने के साथ साथ हम लोग फिर लीनियर मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन और एरियल मैग्निफिकेशन, ये तीन मैग्निफिकेशंस पढ़ेंगे, तो लेंस का एक मेजर चंक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ लेंस। लेंस कहाँ यूज होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होगा, सो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने के वो करेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे मिरर, ठीक है। सो दैट विल एंड द एंटायर रे ऑप्टिक्स चैप्टर, ठीक है बेटा। सो अब हम लोग जा रहे हैं किधर, रे डायग्राम ऑफ लेंस पे। देखिए बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द रे डायग्राम एंटायर, मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा, मैं आपको मेथड सिखा दूंगा, एक दो रे डायग्राम मैं आपके लिए बना दूंगा, बट आई वांट यू टू सिट एंड ड्रॉ द ऑल द रे डायग्राम्स, और ये रे डायग्राम का टेबल हमको याद होना चाहिए। तो जब हम सम सॉल्व करेंगे ना, तो अपने को पता चलेगा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। Okay, so when we are going to solve numericals, we will come to know whether our answer is right or wrong if you know this table really well. तो एक काम करते हैं, टाइटल लिखेंगे रे डायग्राम्स ऑफ लेंस, ठीक है, ये टाइटल लिखा हमने। हमको रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो देखिए पहले रूल्स सीख लेते हैं। रूल्स फॉर रे डायग्राम्स, और ये अपने को पता है कि इफ टू रिफ्रैक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट, then you are going to get a point जिसको हम लोग जहाँ इमेज फॉर्म होगा, राइट। सो फर्स्ट रूल क्या बोलता है बेटा, if I have a lens
नो व्हाटएवर आई एम डूइंग फॉर कॉन्वेक्स इज ट्रू फॉर कॉनकेव आल्सो. ऑफ कोर्स यहाँ जो कन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज करता है दैट छोड़ के बाकी सब रूल्स सेम रहेगा. एनी रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास अनडेविएटेड. मतलब समझो बेटा, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो अनडेविएटेड पास होगी. ठीक है. सो एनी रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास अनडेविएटेड. एनी रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास अनडेविएटेड. ये रूल नंबर 1 होगा. ठीक है बेटा. रूल नंबर 2, एनी रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर मेरे पास एक रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास होगा तो इट हैज टू पास थ्रू व्हाट टेल मी द फोकस. इट विल पास थ्रू द फोकस और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव. ठीक है. इट विल पास थ्रू द फोकस इन केस ऑफ व्हाट टेल मी कॉन्वेक्स एंड अपीयर टू पास इन केस ऑफ कॉनकेव. देखो बेटा, कॉनकेव का भी मैं आपको साथ में बना के दिखा देता हूं, नहीं तो आधे लोग ना कंफ्यूज रहते हैं हमेशा. देखो इसमें तो वही रहेगा, एनी रे पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास अनडेविएटेड, चाहे वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव हो. मैं इसमें आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान से देखो कि अगर ये बेटा कॉनकेव है और इससे पैरेलल, प्रिंसिपल से पैरेलल आपने एक रे बनाया तो ये तो डाइवर्ज करेगा ना. तो यार दिस विल नॉट पास थ्रू द फोकस, इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस. ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो प्लीज रिमेंबर, एनी रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस. ठीक है. थर्ड पॉइंट, एनी रे पासिंग थ्रू द फोकस. अगर मेरे पास एक रे है जो फोकस से पास हो रही है, एनी रे पासिंग थ्रू द फोकस, इफ एनी रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, सो सपोज दिस इज द फोकस और एनी रे वहां से पास हो रही है. सो एनी रे पासिंग थ्रू द फोकस, ये फोकस है, वहां से पास हो रही है रे, so it will definitely pass parallel to the principal axis after refraction. So any ray passing through the focus after refraction will definitely pass through what? Will pass parallel to the principal axis. Now that will be true even for, अगर मैं कॉनकेव के लिए बनाने जाऊंगा तो कॉनकेव के लिए क्या होगा बेटा, ये अपना कॉनकेव है, फॉर एग्जांपल उसका फोकस यहाँ है, यहाँ से अगर कोई रे जाएगी इधर से पास होगी तो डेफिनेटली इट शुड ट्राई टू पास व्हाट टेल मी पैरेलल. ठीक है ना. सो अगर कोई रे पास कहां से होने वाली है बताइए, एनी रे पासिंग थ्रू द फोकस. अगर फोकस से कोई रे पास होगी तो इट विल डेफिनेटली ट्राई टू पास व्हाट पैरेलल. ठीक है. सो ये हमको याद रखना है, एनी रे पासिंग थ्रू, एनी रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास व्हाट अनडेविएटेड. एनी रे पासिंग पैरेलल विल पास थ्रू द फोकस. एनी रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास व्हाट पैरेलल. फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज वी रिक्वायर ओनली मिनिमम 2 रेज to form the image. yes or no? तो एक छोटा सा मैं आपको रे डायग्राम बना के बताता हूँ ताकि आप यूज कर सको. लेट अस से ये तीनों में से कोई भी 2 रूल आप यूज करके यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स. ओके, कोई भी 2 रूल यूज करके आप डायग्राम, देयर आर मेनी रूल्स बट आउट ऑफ द 3 एनी 2 विल यूज एंड विल गेट द आंसर. तो मैं आपको एक रे डायग्राम बना के बताता हूँ. ओके, लेट अस से आई ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर यू. ओके, एक रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का बनाता हूँ. ठीक है, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है. ओके, दिस इज नथिंग बट ऑप्टिकल सेंटर. ये साइड अपने पास ऑब्जेक्ट पॉइंट होगा, वो साइड इमेज पॉइंट है, तो ये उसका फोकस है. ये पॉइंट बेटा उसका 2f है. ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है AB. एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एक रे ऑफ कोर्स विल ऑलवेज ट्रैवल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, विल पास अनडेविएटेड, क्योंकि दैट इज गोइंग टू पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. एनी रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास अनडेविएटेड. फिर मैं दूसरा रे भी यहाँ से निकालेगा, एनी रे पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास अनडेविएटेड. ये निकाल दिया मैंने यहाँ से एक रे. फिर मैं क्या बोलेगा, ये मेरा ये साइड, यहाँ एनी रे पासिंग पैरेलल शुड पास थ्रू द फोकस. तो फोकस से पास होता हुआ यहाँ कहीं एक इमेज बनेगा. Right, so this is nothing but the focus, so here you are going to get an image. Of course मेरा डायग्राम डायमेंशनली रॉन्ग है क्योंकि ये छोटा, मतलब here you are going to get a diminished image. ठीक है, आपको एक diminished image मिलना चाहिए. मेरा ये बड़ा आ रहा है डायग्राम में, इसके लिए मैं बोला आपको स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा, स्केल लेके ड्रॉ करना पड़ेगा. अभी फिलहाल मुझे जो यहाँ समझाना है आपको वो कुछ अलग चीज़ है. ये मेरा A1 AB है तो इसका नाम है A1 B1 रखते हैं. ओके, देखो बेटा ये वाला डिस्टेंस, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. दिस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, और ये मेरा इमेज डिस्टेंस है. ठीक है, दिस इज द इमेज डिस्टेंस.
राइट? नाउ आप जरा सोच के देखो, इमेज रियल है कि वर्चुअल है? इमेज रियल है कि वर्चुअल है? ऑफ कोर्स दीज टू रेज आर रियली मीटिंग ना, तो ये रियल इमेज है। कौन सी इमेज है बोलो? रियल इमेज, ठीक है? अब रियल इमेज, इन दिस केस रियल इमेज will always be formed on the other side of the lens. तो याद रखना, लेंस में रियल हमें इमेज हमेशा अदर साइड ऑफ द लेंस फॉर्म होगी। तो जब भी क्वेश्चन हुआ एंड दे से दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस और इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ये दो वर्ड आया, आपको समझ जाना चाहिए रियल इमेज रहेगा। और जहां तक रियल इमेज का सवाल है बेटा, इट विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड वी विल बी पॉजिटिव। यू इस केस में रियल ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट बिकॉज यहाँ से रेज इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो रही है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और रियल ऑब्जेक्ट इन दिस केस अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन। सो याद रखना, इन लेंस द साइड विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस इज ऑलवेज नोन एज अ रियल स्पेस। वहां रियल इमेजेस फॉर्म होंगी। कौन सी इमेजेस फॉर्म होंगी? रियल, तो ये रियल इमेज फॉर्म होगी। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर यही डायग्राम मैं आपको कॉनकेव के लिए बना के दिखाऊं, इफ आई शो यू द सेम डायग्राम फॉर कॉनकेव, देन you will realize, ये डायग्राम समझो, ये बेटा टू स्केल नहीं है, इसका मैं टेबल बना के अपन फिर से ड्रॉ करेंगे। आई जस्ट वांटेड टू शो यू रियल ऑब्जेक्ट, ये है रियल इमेज। रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। याद रखना, रियल इमेज रिफ्रैक्शन होगा बेटा, जब रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट कब होंगी? ऑन द अदर साइड। सेम साइड में तो नहीं मीट हो सकती, दे विल अपीयर टू मीट। सो ऑन द सेम साइड हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगा, ऑन द अदर साइड विल गेट व्हाट? रियल इमेज। मिरर में एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे, ठीक है? तो लेंस अपन एकदम अच्छी तरह पढ़ लेंगे ना मैम बेटा, तो मिरर में हमको सिर्फ अपना आंख बंद करके ये सोचना पड़ेगा कि लेंस का एग्जैक्टली उल्टा करना है हमको, ठीक है? थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखते हैं ये डायग्राम। अगर मैंने आपको बोला कि आप मेरे को कॉनकेव के लिए ड्रॉ करके बताओ, तो आप इजीली ड्रॉ करोगे। देखो, आप बोलोगे सर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इसका नाम AB है, ये पास हो रहा है सीधा। फिर आप मेरे को बोलोगे सर एक काम करते हैं, इसको अपन ऐसे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर कर लेते हैं, आई से ओके। फिर हम लोग बोलेंगे कि एक रे इससे पैरेलल पास कर लेते हैं, ठीक है? पास कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग इसको डाइवर्ज कराएंगे। अब यार ये इस रे का और इस रे का मिलना पॉसिबल ही नहीं। आप देखो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैं रिट्रेस करेगा बैकवर्ड। तो यहाँ देखो ऐसा लगता है कि ये वाला रे और ये वाला रे अपीयर टू मीट, तो यहाँ एक इमेज फॉर्म होगी, मानते हो? इसका नाम A1B1 है ना? अब आप ध्यान दोगे तो ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि नेगेटिव है, और इस केस में मेरा इमेज डिस्टेंस भी बेटा नेगेटिव है बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव, इन द डायरेक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है? तो वर्चुअल इमेज डिस्टेंस लेंस में हमेशा नेगेटिव होगी। तो हमको क्या सीखने को मिला? फॉर लेंस real image P is positive, virtual image P is negative। सीखने को मिला कि नहीं दोस्तों? है कि नहीं यार? और ये बेचारा कॉनकेव लेंस का औकात ही नहीं कि वो रियल इमेज फॉर्म कर पाएगा फॉर रियल ऑब्जेक्ट। ये रियल ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ से इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो रही है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट का वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। कॉन्वेक्स वर्सेटाइल लेंस है, जबरदस्त लेंस है, वो रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है, वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है। मैं बताता हूँ उसका एक वर्चुअल इमेज आपको फॉर्म करके दिखाता हूँ, कॉन्वेक्स का एक वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करके दिखाता हूँ। फिर अपने को टेबल पे ध्यान देना है बेटा, दैट टेबल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि आप सब याद रखना, मुझे एवरी स्टूडेंट हैज टू ड्रॉ द डायग्राम टू स्केल, तब जाके अपने को मजा आने वाला है, वरना क्या है हम लोग सिर्फ घूमते रहेंगे, ठीक है? सो ये डायग्राम्स आप समझो, ओके? देखो मैं वही एक एनी रे पासिंग पैरेलल विल पास थ्रू द फोकस, any ray passing through the optical center will pass undeviated, बराबर, और प्रिंसिपल एक्सिस तो रहेगा ही रहेगा, ओके? अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इवन कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल इमेज, तो दिखाई दिया, इट कैन आल्सो फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। तो बेटा जहां तक कॉन्केव का सवाल है, अगर देखो जब तक वो मेंशन नहीं करता हम लोग ऑब्जेक्ट हमेशा क्या मानेंगे? रियल ऑब्जेक्ट मानेंगे। रियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव, ओके? और रियल इमेज डिस्टेंस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड वर्चुअल इमेज डिस्टेंस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ये हमको याद रखना है लेंस के लिए। मिरर में ये उल्टा हो जाएगा, वो बाद में देखते हैं, पहले लेंस को हैंडल करते हैं, ठीक है? अब एक डायग्राम में आपको और बताता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास, ठीक है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। आपने क्या किया ना बच्चा, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ ला के रख दिया, वेरी क्लोज, मतलब विद इन फोकस ला के रख दिया। तो देखिए कहानी कैसी होगी, एनी रे पासिंग थ्रू दिस
विल पास अनडेविएटेड, ये तो निकल जाएगी, ठीक है। फिर आप बोलोगे एनी रे पासिंग पैरेलल शुड पास थ्रू द फोकस, तो शुड पास थ्रू द फोकस, मे बी कुछ थोड़ा सा ऐसा होगा कहीं। अब यार ये रे और ये रे का मिलन तो होगा नहीं, हम आंख लगा के यहाँ बैठेंगे, हमको क्या दिखेगा जरा देखो, हमको ये दिखेगा एज इफ ये रे पीछे जाके और ये रे को अगर मैं प्रोड्यूस बैकवर्ड करूं तो मुझे दिखता है कि एज इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, तो ये अपना A1 B1 हो जाएगा, जानते हो, एज इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, ऐसा लगेगा कि लाइट वहां से आ रही है आंख को, राइट। सो दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज, ठीक है, और हमको दिख रहा है कि ये दिस इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो V हैज टू बी नेगेटिव एंड रियल ऑब्जेक्ट का U इज ऑलवेज व्हाट टेल मी नेगेटिव, ठीक है, अंडरस्टूड। सो हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाया, इन केस ऑफ लेंस रियल इमेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। चलिए अब मैं टेबल की जो बात कर रहा था, मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चा ये टेबल बनाएंगे, ओके। आई वॉन्ट एवरीवन टू मेक दिस टेबल प्लीज। उसके पहले अगर चाहिए तो मैं एक कॉन्सेप्ट डिराइव करके दिखाता हूं आपको, जिसका नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन, वो एक कॉन्सेप्ट डिराइव करके दिखाता हूं, देन वी कैन गो अहेड विद द टेबल, ओके। तो आपको ये याद रखना है, रियल इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव। सो आई विल डिराइव एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। बेटा किसके लिए? लीनियर मैग्निफिकेशन, ये कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है, ओके। लीनियर मैग्निफिकेशन, उसका सिंबल हम लोग छोटे m से डिनोट करने वाले हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज ऑफ हाइट ऑफ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमको याद रखना है। अब इसका मुझे एक्सप्रेशन डिराइव करना है आपके लिए, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा रियल इमेज का m क्या होगा, वर्चुअल इमेज का m क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से अब मैं कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं बेटा। आई एम ऑलवेज टेकिंग कॉन्वेक्स लेंस बिकॉज इट इज मोर वर्सेटाइल। कॉन्केव लेंस हमेशा सिर्फ वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है, ये रियल और वर्चुअल दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू कॉन्वेक्स। जो एक्सप्रेशंस मैं कॉन्वेक्स के लिए डिराइव करता हूं दैट इज ट्रू डेफिनेटली फॉर कॉन्केव विद साइन कन्वेंशंस, ठीक है, ओके। चलिए बेटा एक काम करते हैं, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। अब मेरे पास यहाँ F है और यहाँ 2F है, और मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, ओके। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, नाम इसका AB रखा है, रूल वही, ये तो सीधा जाएगा, और इसको यहाँ से पास किया मैंने, और एनी रे पासिंग पैरेलल विल पास थ्रू द फोकस। फोकस यहाँ है फॉर एग्जांपल, यहाँ एक इमेज फॉर्म होगी, ओके। दिस इज गोइंग टू बी F, दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ एक इमेज फॉर्म हो रही है, दिस इज गोइंग टू बी 2F, ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी A1 B1। पहली बार आपको डिसाइड करना है ये रियल इमेज है बिकॉज ये देखिए रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट हो रही है, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अ रियल इमेज, यस डेफिनेटली, ओके। अब हम लोग को ये हाइट ऑफ इमेज है बेटा, और ये मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए दो ट्राइंगल्स के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक ट्राइंगल का नाम OAB में, इन ट्राइंगल OAB मुझे हाइट ऑफ इन ट्राइंगल OAB, इफ आई वांट यू टू फाइंड tan थीटा, तो आप मेरे लिए tan थीटा फाइंड करोगे तो tan थीटा विल बी HO by U, राइट। ये U है और ये V है, तो HO by U आएगा डेफिनेटली। फिर एक दूसरा हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बेटा, O की जगह ये O ले लिया, चलिए ऑप्टिकल सेंटर के नाम पे, ट्राइंगल OA1 B1, OA1 B1। उसमें अगर मैं tan थीटा निकालूंगा तो आंसर आएगा HI डिवाइडेड बाय V, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 बताइए क्या आएगा फ्रॉम 1 and 2। HI by V is equal to HO by U.
सो HI/HO comes out to be V/U. अब जरा सोचो HI/HO तो M था, तो M का फॉर्मूला बेटा ऐसा होता है HI/HO V/U. ठीक है, यस यस एवरीवन. अब ये फॉर्मूला आ गया. अब हमको चेक करना है रियल इमेज के लिए M क्या होगा और वर्चुअल इमेज के लिए M क्या होगा. ये इमेज रियल है, ठीक है बेटा. सो रियल इमेज, अगर इमेज रियल रहेगी, रियल इमेज, तो रियल इमेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन्वर्टेड. वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट. वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. राइट, अपना इमेज रोज आईने में देखते हो ना, इट्स वर्चुअल इमेज, सो इरेक्ट रहती है. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. सो रियल इमेज अगर इन्वर्टेड है तो हम अगर कन्वेंशन वाइज देखने जाए तो HO क्या है बेटा, HO above the principal axis is positive, HI below the principal axis negative, right. V क्या है बेटा, V is positive and U is negative. तो अगर M में निकालूं HI/HO तो आंसर क्या आएगा बोलो. HI/HO से मैं निकालूं तो आंसर आएगा HI is negative अपॉन पॉजिटिव, तो आंसर इज नेगेटिव. अगर M में V/U से निकालूं तो V मेरा पॉजिटिव है एंड U मेरा नेगेटिव है, फिर से आंसर नेगेटिव आएगा. मॉरल ऑफ द स्टोरी, फॉर अ रियल इमेज M is always going to be negative. For a real image M is always going to be negative. For a real image M is always going to be negative. ये अपने को सीखने को मिला. तो हमने ये सीखा अभी तक, रियल इमेज के लिए तुम्हारा V नेगेटिव रहेगा, बराबर ना. रियल इमेज के लिए V पॉजिटिव रहेगा. रियल इमेज के लिए V पॉजिटिव बिकॉज इट इज फाउंड ऑन द सेम साइड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. तुम्हारा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा तो हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव एंड M विल बी नेगेटिव. तो फॉर अ रियल इमेज V इज पॉजिटिव, M इज नेगेटिव. ओके, अब वर्चुअल इमेज कुछ रटना नहीं है बेटा. वर्चुअल इमेज इरेक्ट है ना, वर्चुअल इमेज इरेक्ट है ना, तो जो जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज बनेगा, तो रेशियो हैज टू बी पॉजिटिव. अगर ये उल्टा तो ये भी उल्टा ही दिखेगा, ये सीधा तो ये भी सीधा ही दिखेगा. यस, सो इफ दिस इज नेगेटिव दिस इज आल्सो नेगेटिव. If this is positive, this will also be positive. But in case of real, अगर ये positive है तो ये negative है, और अगर ये negative है तो ये positive आएगा. So इसके लिए उसका M negative आता है. तो वर्चुअल इमेज में हमको क्या याद रखना है बेटा, वर्चुअल इमेज में हमारा HO लेटर से पॉजिटिव लिया तो हमारा HI भी पॉजिटिव आ जाएगा. हमारा U अगर नेगेटिव है तो V भी नेगेटिव आता है. इस कारण से ये दोनों पॉजिटिव बाय पॉजिटिव हमको क्या देते हैं, पॉजिटिव. और ये आएगा V/U, वो आंसर नेगेटिव बाय नेगेटिव से आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव. मतलब वर्चुअल इमेज का M हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. ये फॉर्मूला है HI/HO V/U. ये सब में साइन कन्वेंशन डालना है, इसमें साइन कन्वेंशन डालना है, यस और नो. और हमने क्या सीखा कि जब भी वर्चुअल इमेज रहेगी उसका M डैश होगा, पॉजिटिव होगा. M विल बी पॉजिटिव. आई होप इट्स क्लियर. तो मैंने आपको मैग्निफिकेशन सिखाया बेटा. अब मुझे बताओ, मैग्निफिकेशन मोर देन 1 कब होगा. मैग्निफिकेशन मोर देन 1 तब होगा जब HI इज मोर देन HO. और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 कब होगा, तब HI इज लेस देन HO. और मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 कब होगा, जब दोनों इक्वल है. अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, HI/HO तो बात की बात रहेगी. अगर मुझे इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है तो उससे भी मैं पता लगा सकता हूँ क्या कि M मोर देन 1 है कि लेस देन 1 है. If suppose V is more than U, magnification more than 1. If V is less than U, magnification is less than 1. If V is equal to U, magnification is 1. अब साइन कौन बताएगा, मैग्नीट्यूड तो मिल गया. यस, साइन कौन बताएगा, वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल. अगर रियल है तो M नेगेटिव है, वर्चुअल है तो M पॉजिटिव है. सिंपल. M का फॉर्मूला V/U, HI/HO V/U. ठीक है, ओके, राइट. V is greater than U, it has to be what, magnified image. पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर रियल है तो नेगेटिव और वर्चुअल है तो पॉजिटिव. ठीक है, सिंपल. ओके, अब मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्त जादू फॉर्मूला यूज डिराइव करने वाला हूँ और ये फॉर्मूला इज गोइंग टू बी द की फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सम्स. हम बार बार ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मैं एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा जो हम बार बार यूज करने वाले हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. I want you to get me relation between M, F, U, M, F and U, and then M, F and V. मुझे 2 डेरिवेशन करनी है अब आपके साथ. I hope linear magnification का डेरिवेशन बहुत सिंपल है. Yes,
height of image upon height of object is equal to image distance upon object distance. For real image m is negative because it is always inverted, and for virtual image m is positive because it is always erect. Real images can be obtained on the screen, virtual images cannot be obtained on the screen. ठीक है? Okay? चलिए, अब आप मुझे एक derivation करके दिखाएंगे, and that derivation is what? You are going to derive relation between f, m and u. ठीक है? चल, हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला लिखेंगे 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Agreed everyone? लेंस मेकर फॉर्मूला हमने डाल दिया. एक काम करते हैं, मुझे u चाहिए, तो एक काम करते हैं, u चाहिए तो if I want u, so what should I do? I should multiply throughout by u. चलो, u से multiply करते हैं throughout u से multiply किया तो ऐसा आ जाएगा. ओके, सो ये ऐसा हो जाएगा. अब जरा सोचते हैं, m was v by u, so what is 1 by m बेटा? u by v. तो इसको मैं 1 by m लिखेगा, कोई रोएगा नहीं ना. ओके, चलो ये साइड लाओ. 1 by m is equal to u by f plus 1. तो अपना 1 by m is equal to f plus u upon f. सो हमारा m का फॉर्मूला आ गया f upon f plus u. जादू फॉर्मूला, जबरदस्त फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार यूज करेंगे. एंड इट हैज टू बी यूज्ड विद कन्वेंशन, विद साइन कन्वेंशन हमको यूज करना है ये. और अपना रूल क्या है? The term which we have to find, we don't put sign convention in that. For example, अगर focal length find करना है तो focal length में sign convention नहीं डालने का, answer with sign convention आएगा. अगर object distance find करना है तो object distance में convention नहीं डालेंगे, answer with sign convention आएगा. कल m find करना है, m में sign convention नहीं डालेंगे, answer with sign convention आएगा. जो term find करना है उसमें convention नहीं डालना है. बेटा जो find करना है उसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं, ऐसा करके solve करने का. ठीक है? ओके, और बाकी सब टर्म में साइन कन्वेंशन डालने का. जो फाइंड करना है उसमें कन्वेंशन नहीं डालना है. बार बार बोल रहा हूँ, जो फाइंड करना है उसमें कन्वेंशन नहीं डालना है. बोलो, जो फाइंड करना है उसमें कन्वेंशन नहीं डालना है, बाकी सब में कन्वेंशन डालना है. आई गॉट दिस रिलेशन बिटवीन एम, एफ एंड यू. कैन यू थिंक अबाउट गेटिंग रिलेशन बिटवीन एम, एफ एंड वी? कम ऑन, यू शुड बी एबल टू डू इट. एम, एफ एंड वी. देखो बेटा, जिसके साथ रिलेशन चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देने का लेंस मेकर फॉर्मूला को, खत्म है. रूल वेरी सिंपल. चलिए, रिलेशन बिटवीन एम, एफ एंड वी. ठीक है? चलिए बताइए. 1 upon f is equal to 1 by v minus 1 by u. रूल क्या है? मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई v, बिकॉज उसके साथ रिलेशन चाहिए तो 1 minus v by u. अच्छा, ये ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिखा, यही तो m है ना. ठीक है? अब मुझे क्या थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते. देयरफॉर कैन आई से m is equal to 1 minus v by, तो m का आंसर क्या आएगा? f minus v upon f. ओके, these are the two formulas. So this is the relation between m, f and u. तो u पूछेगा, f दिया रहेगा, m दिया रहेगा, ये वाला फॉर्मूला. v पूछेगा तो वाला फॉर्मूला. खत्म. और दूसरा u निकाल लो, लेंस मेकर फिर से यूज करके निकाल लो. मर्जी आपकी रहेगी यार, कुछ भी यूज करो. लेकिन मैं m इज इक्वल टू ये फॉर्मूला अवॉइड करता हूँ. आई विल अवॉइड दिस फॉर्मूला. ठीक है? मैं ये दो फॉर्मूले से अपना काम चलाऊंगा. इसमें टेंशन नहीं है यार, इसमें बहुत सारे टेंशन है. ठीक है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? समझाइए. ओके, अब अपन जाएंगे इसके बाद किसमें? वो टेबल में मुझे m भी चाहिए था, इसके लिए मैंने बताया. m इंडिकेट्स कि इमेज कितनी साइज बड़ी हो रही है. यस और नो. मैग्निफिकेशन, लीनियरली कितनी मैग्नीफाई हो रही है. 1 डायमेंशन की बात चल रही है बेटा, लीनियर. फिर अगर ऑब्जेक्ट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखना, सो लीनियर मैग्निफिकेशन. ऑब्जेक्ट इज केप्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लैटरल मैग्निफिकेशन. अलोंग द लेंथ मैग्नीफाई होगा वो. ये केप्ट परपेंडिकुलर टू व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट इज लीनियर मैग्निफिकेशन. केप्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लैटरल मैग्निफिकेशन. तो वो सब बाद में करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये सारे रिलेशंस हो गए. एक टेबल, अब मैं इसके बाद आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ. ठीक है? सो इसके बाद मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ.